जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से आज हम हंस चक्र के बारे में देखने वाले हैं और उसको शुद्ध कैसे करना है वो भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इस आज की परिस्थिति में हंस चक्र बहुत ठीक रहना, संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है। एक अमृतवाणी ने, माँ ने हंस चक्र को फिल्टर कहा है। जो कुछ वायरस बैक्टीरिया बाहर से हम पे अटैक करते हैं वो हंस चक्र उसको फिल्टर करता है और हमको उस परेशानी से दूर रखता है। ये सारे जो हंस चक्र की पूजा है ये सारे फॉरेन में होने के कारण बड़े बड़े स्पीच सारे इंग्लिश में है, तो भी कुछ स्पीच में का जो थोड़ा रेफरेंस है हिंदी में मिला है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हंस चक्र के बारे में माँ से हम आत्मसात करते हैं। एक ही मिनट में हंस चक्र के बारे में ऑडियो वीडियो लग जाएगा। 1988 में जर्मनी की एक हंस चक्र पूजा है, 90 की यूएसए की एक हंस चक्र पूजा है, 91 की न्यूयॉर्क की एक है, 92 की कनाडा की भी एक है और विष्णु माया पूजा 87 में भी हंस के बारे में माँ ने बताया है। तो हम पहली हंस चक्र के बारे में आत्मसात करते हैं। So this is the place where these interchanges take place between both the nadis, and here the hamsa lies outside the path of Kundalini. They sort of come out here, out of the path of Kundalini. It's very surprising. When the Kundalini moves, she goes from Vishuddhi direct to Agya. Now, how can we improve our hamsa then? It's a big problem. Because if our hamsa is sick, is over conditioned, the Kundalini cannot work on it. It just gives up. Now, so for hamsa we use all these physical things. Like I said, put the ghee in the nose. Keep it in a way that it is nourished properly. Because Kundalini, if it tries to, too much will have problem because as it is, most of our time we spend in such a manner that your hamsa things become what you call the epithelial cells, the linings become dried out. Now when the Kundalini rises, she may try to create a problem more for that dryness. Maybe. So it is kept out, but it has an effect in the sense that even if there is a light outside, it can fall inside. So it's not the Kundalini directly that affects your hamsa. It is like when the Kundalini awakens, you yourself see now that a person is, whether he is fair complexioned or dark complexioned, he is a human being. You reason it out and hamsa clears up. Then you see yourself that, oh, I am very egoistical. You start seeing yourself through your agya. Start seeing that I am so conditioned. So you reason it out. And that's how you correct your conditionings. This is what is Hamsa Chakra. So Hamsa Chakra cannot be done if just you are a realized soul, but is an effect, is the symptom of your Kundalini awakening. Some people think that you develop discretion just as the Kundalini rises. Is it wrong? No. That has to be deliberately seen, that you build up that discretion within yourself. हंसा का सबसे इम्पोर्टेंट गुण माँ ने बताया कि खुद को खुद की परेशानी देखने का ये हंसा हमको बताता है और फिर वो परेशानी को दूर करके संतुलन
में लाने का काम यह हंसा द्वारा हम खुद के लिए कर सकते हैं, यानी इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। साथ में कुंडलिनी के मार्ग पे ये चक्र नहीं आता है, इसीलिए इसको बाहर से पोषण करना पड़ता है, इसीलिए घी कैम्फर का महत्व माँ ने इसमें बताया है। दूसरा वीडियो हम देखते हैं जिसमें घी के बारे में माँ बता रही है, वो हिंदी में है। जल्दी। दूसरी बात है कि बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखती हूँ हमसा चक्र की पकड़। हमसा चक्र की पकड़ के लिए रोज थोड़ा सा घी, अच्छा घी बना करके और एक ड्रॉपर शीशी में रख लीजिए और उसको नाक में 2 बूंद जरूर डालना चाहिए। उससे हमसा चक्र साफ रहेगा, सारी ड्राइनेस चली जाएगी। खासकर जो लोग ड्राई है बहुत, उनके लिए फायदे की चीज़ है। उससे आपका हमसा खुल जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। जय श्री माता जी। तीसरा जो वीडियो है वो हंस चक्र और उससे संलग्न 3 चक्रों से जिसका संबंध है उसके बारे में माँ बता रही है, वो हम आत्मसात करेंगे। हमसा चक्र Hamsa chakra is placed here where some of the nerves which are coming from Ida and Pingala cross over and is a part of Vishuddhi chakra. Plus the connection with Vishuddhi and Agya, as you must have read in the Devi Mahatmya, that Sri Krishna is the father of Christ. So the connection between the two is maintained here. And this is very important, Hamsa Chakra is, that if your Hamsa Chakra is not alright, your discretion is very poor. This chakra get easily dried out. Like if you eat very dried food, you see, say, sometimes you also offer me some dry fruit and I have to tell you that not to give too dry fruit. You must eat it with some sauce or some liquid thing, because if you eat very dry fruit, also this becomes very dry. And it's very important, because if this portion becomes dry, you can put some oil or ghee into it to make it alright. But from here starts the drying of the peritoneum, is the lining. If the peritoneum gets dried up, the whole body gets dried up. Could be anywhere in the lung. If it is dried up, it can cause you lung cancer. Even peritoneum can be in a cancer state. So one has to be very careful not to take something very dry, all the time dry food and dry things. Moreover, not to put anything to make this lubricant. Some sort of a lubricant should be there, so there is no problem on this chakra. Because first of all, it loses your discretion. You don't understand things. You don't know what to do. You mean it. You mean good, but you don't do. When you achieve something, it's something not so good. The reason is your discretion is poor. For that, this must not be made dry. I have told many a times to put some ghee every day. Get a little bottle of ghee. Keep it with you with a little dropper. You can put it in the hot water, can heat it up every day and take 2 drops in the nose in the night and in the morning time. It doesn't take much. It should be done. It's for your good. श्री माता जी, थोड़ा सा मराठी में देखते हैं। हंस चक्र जर कोरडं पडलं आणि जर साधकाची शक्ती जागृत झाली तर त्याला त्रास होऊ शकतो. म्हणून हंस चक्राला ओलसर आर्द्रता म्हणजे तुपाने ओलसर ठेवणं गरजेचं आहे. अजून एक महत्त्वाचं, आपल्या शरीरामध्ये 2 अवयवांच्या मध्ये एक पडदा असतो ज्याला मेडिकल सायन्स पेरिटोनियम म्हणतं. ह्या पडद्यामुळं 2 अवयवांमधला जो काही ड्रायनेस आहे तो
थोडक्यात 2 अवयव शुष्क होत नाहीत. नाकामध्ये तूप सोडल्यानंतर सगळ्या शरीरामधलं पेरिटोनियम हे ओलसर राहतं आणि सगळ्या अवयवांचं संरक्षण होतं. आता चौथा व्हिडिओ बघूया, तो पण थोडासा तुपासंबंधी आहे. That's how we show our temper. All the time like this. That's Hamsa. And that's why we have to use what we call the simple thing called ghee or something oily. For ears, for nose, for eyes the kajal, and for this portion also you have to put some ghee in hot water or milk and take it so that you soothe down your nerves and you soothe down your vishuddhi. मगाशी विशुद्धी आणि हंसा चक्राचा संबंध श्री माताजींनी सांगितला. कोमट तूप किंवा लोणी देखील आपण गरम पाण्यामध्ये पिऊ शकतो, जेणेकरून विशुद्धी नीट राहिलं की हंसा नीट राहील आणि हंसा नीट राहिलं की विशुद्धी नीट राहील. म्हणून हंसाचा आणि आज्ञाचा, हंसाचा आणि विशुद्धीचा आणि हंसाचा आणि मूलाधाराचा संबंध श्री माताजींनी सांगितलेला आहे. पुढचा व्हिडिओ बघूया. You must put some heated butter in the nose, all of them. There. Inside? Inside. With a dropper. All right? Keep your heads right. Heat butter and sieve it out. And then when it is slightly warm, not very warm, absolutely slightly warm, then put it in your nose. Very important, because I don't know, in this country people, it's a very simple thing to be done. Once in a while, about say 2-3 days later, or even every day you do, doesn't matter. It's like putting cream on your hands. You see, because the cold weather also chaps inside lining of the nose. And when you put this, it makes the nose smooth and you don't get troublesome. It's very simple. All of you should do, all the Sahajogis are supposed to do. There are so many things Sahajogis are supposed to do. One of them is this, that try to keep your Hamsa Chakra all right. By keeping your nose all right, you keep your Hamsa Chakra better. So better use this simple method of heating some ghee, we call it. You see, you can prepare it, heated butter, keep it in a bottle with a dropper and heat it in the hot water and then put it in the nose, just like that, in the night before sleeping. Even in the ears, you must put olive oil. It's very important. For the teeth also, you must take some salt, put some olive oil and rub your gums. जय श्री माता जी. इस अमृतवाणी में माँ ने नाक में जैसे घी छोड़ते वैसे आप मक्खन भी गर्म करके गुनगुना करके नाक में छोड़ने के लिए बताया है. अभी उसी में और एक छोटा सा पार्ट है, वो हम देखेंगे. Small things must be taken care of. You see? Now if you have too much of cold, just a minute. If you have too much of cold, then you can mix up with camphor with oil and put that in the nose. Little actually, not much. That also is very good. That also soothes your cold and puts you right. This country has one big problem is Vishuddhi Chakra everywhere. जैसे कि सर्दी में आप कैम्फर मिला हुआ घी नाक में छोड़ोगे तो सर्दी खांसी में भी सर्दी में उसका असर आता है, ये माँ ने बताया है. इसके पहले की वीडियो में ये भी बताया था माँ ने, जैसे कि ज़्यादा गर्मी हो या फिर ज़्यादा ठंडी हो तो हमारी जो स्किन है, त्वचा है, वो ड्राई हो जाती है. तो जैसे हम बाहर से मॉइस्चर लगाते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम या कुछ, वैसे ही हंसा चक्र के अंदर जो कुछ पेशियाँ है, इपिथेलियल सेल्स उसे कहा है मेडिकल साइंस ने, वो ड्राई न होने के लिए हमें घी कपूर का इस्तेमाल करना चाहिए. आगे का वीडियो हिंदी में है, उसमें भी माँ क्या कहती है देखते हैं. कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं
जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती है। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए हैं। उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए है और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ जाते। इन सब चीजों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीजें दे करके किया जा सकता है। अब आज्ञा चक्र हमारा बीच में, ये महाविष्णु का स्थान, इसका वर्णन हमारे यहाँ बहुत सुंदर देवी महात्म्य में मार्कंडेय स्वामी ने करके रखा है, लेकिन कौन पढ़ता है आजकल देवी महात्म्य, किसको फुर्सत है। ये महाविष्णु का स्थान है। और जय श्री माता जी। अभी ये एक इंग्लिश वीडियो है जिसमें माँ हम सब से हंसा चक्र का मसाज करा के लेने वाली है। हम सब लोग जैसे माँ करती है वैसा हम करेंगे। bring it here. Vishuddhi. Must move Vishuddhi quite a lot. This is the Virata's thing. Now the Agya. Now the Hamsa, just with this finger. Better now? Relief? Much better. हम हंसा का मसाज करते रहेंगे थोड़ी देर, और इसमें हम माँ एक मंत्र बोलने वाली है, वो हम आत्मसात करते हैं। हंसा का मसाज वैसे ही चलने दो। Now, see, this is Hamsa Chakra. So you have to say that Tvameva Sakshat Hamsa Chakra Swamini Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi Namo Namah. See, open up. Now say it, all of you, because just now catching. Now put your finger like that. And now say it. हम कहते हैं श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हम थोड़ा सा हाथ नीचे लेते हैं और 1 मिनट इसमें ध्यान करते हैं। जय श्री माता जी। अभी हम ये जो घी कपूर बनाना कैसा है और नाक में छोड़ना कैसा है, इसकी एक छोटी सी ऑडियो क्लिप मराठी में है, वो हम देखते हैं। आज आपण नाकामध्ये हंसचक्रामध्ये तूप कापूर सोडण्याची विधी बघणार आहोत। आपल्या बेडवरती असं साधारण झोपायचं आहे आणि बेडच्या कडेला हळूहळू थोडीशी मान खालच्या दिशेने, जमिनीच्या दिशेने सोडायची आहे आणि अजून थोडीशी अशी, जेणेकरून साधारण हा आपल्याला अँगल मिळेल। हे नाकाचा शेंडा जर असा उचलला आपण तर वरच्या बाजूला आपल्याला तूप सोडायचं आहे। खालच्या बाजूला सोडलं तर ते घशात जातं आणि वरच्या बाजूला सोडलं तर ते हंसचक्राकडे जातं। तर अशा पद्धतीने ड्रॉपरमध्ये किंवा बॉटलमध्ये जर असेल तर बॉटलमध्ये
आपल्याला वरच्या बाजूला 2 थेंब इथे सोडायचेत आणि 2 थेंब इथे सोडायचेत. हे सोडून झाल्यानंतर हळूहळू असं नाक बंद चालू करायचं आणि आतमध्ये ओढायचं आहे, पण डोक्याकडं ओढायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर थोडंसं तूप घेऊन तुम्ही असं मसाज करू शकता. ह्याच्या जोडीला तुम्ही असं थोड्या वेळ असं डाव्या बाजूलाही थांबू शकताय, थोडंसं उजव्या बाजूला पण थांबू शकता, जेणेकरून दोन्ही हंसामध्ये आज्ञेमध्ये ते तूप जाईल. आता ही पोझिशन थोडीशी काही जणांना अवघड जाईल, कारण की याच्यामध्ये मानेवरती खूप ताण येतो. म्हणून ब्लड प्रेशरचे पेशंट, मानदुखीचे पेशंट, चक्कर येणारे म्हणजे व्हर्टिगोवाले यांनी ह्या पोझिशनमध्ये तूप कापूर सोडायचं नाही आहे. मग अशा वेळी काय करायचं, तर ती दुसरी पोझिशन सुद्धा आपण तुम्हाला लगेचच दाखवूया. सोपी पोझिशन मग तुम्हाला अशा पद्धतीने करता येईल. सरळ झोपायचं आहे, हळूहळू मान वर उचलायची आणि या पोझिशनमध्ये पुन्हा एकदा आपण त्याच पद्धतीने नाकाचा शेंडा वर उचलून दोन्ही नाकपुडीमध्ये 2-2 थेंब तूप सोडायचं आहे. अशा अवस्थेमध्ये थोडंसं आपल्याला 3 ते 5 मिनटं आराम करायचा आहे, जेणेकरून हे तूप हंसापर्यंत पोचलं पाहिजे. या तूप कापराच्या फायद्यामध्ये जे श्री माताजींनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, की ज्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचं म्हणजे की नासा ही शिरोसो द्वारम असं आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे. याचा अर्थ असा आहे की नाक हे डोक्याचा दरवाजा आहे. म्हणजे नाकातनं काही सोडलं तर ते डोक्याकडं जाईल. म्हणून तूप कापूर आपण इथं सोडलं तर हंसाकडं आणि आज्ञाचक्राकडं ते जातं. दुसरं महत्वाचं म्हणजे ऊर्ध्वमूलम अधशाखा, म्हणजे असं की जसं झाडाची मुळं खाली असतात आणि झाड वर असतं, पण भगवद्गीतेने मात्र उलटं सांगितलेलं आहे की झाडाचे मुळं वर आहेत, आपल्यामधलं मुळं वर आहेत आणि झाड खाली आहे. मग औषध मुळांकडे गेलं पाहिजे. तसंच कुंडलिनी शक्ती सुद्धा खालनं वर चढली की ते मुळांकडे जाते. आता आपण तूप कापराचे फायदे बघणार आहोत. सर्वात पहिला फायदा म्हणजे आपल्यामधले जे रिॲक्शन्स आहेत त्या पहिले कमी होतात. शांती आणि निर्विचारता टिकून राहते, कारण की आज्ञामधले विचार जे सतत चालू असतात ते कमी होतात. हंसचक्र आणि विशुद्धी चक्र, हंसचक्र, आज्ञाचक्र, हंसचक्र, मूलाधार चक्र, हे जे 3 कॉम्बिनेशन आहे ह्या तिन्ही चक्रांवरती त्याचं काम होतं. आणि सर्वात महत्त्वाचं, पहाटे लवकर जाग येते, कमी वेळात जास्त विश्रांती मिळते मेंदूला. ज्यांना जास्त आळस आहे त्यांचा आळस कमी होऊन स्फूर्ती येते, आणि ज्यांना झोपच येत नाही त्यांना शांत झोप पण लागते. अशा दोन्ही पद्धतीचं काम येतं. तसंच टाळूवरचं चैतन्य, सहस्रार चक्रावरचं आणि दोन्ही हातावरचं चैतन्य वाढीला सुद्धा मदत होते. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सत असत विवेक बुद्धी, जी श्री माताजींनी आपल्याला सांगितलेली आहे ती सर्वात जास्त प्रमाणात वृद्धिंगत होते. आणि मगाच्या अमृतवाणीमध्ये जे श्री माताजींनी सांगितलं आहे, पेरिटोनियम हा एक असा अवयव आहे, पडदा आहे, 2 अवयवांच्या मधला पडदा. तो जर सुकला तर अवयवांमध्ये प्रॉब्लेम निर्माण होतो, रोग तयार होतो. नाकात तूप सोडलं तर हे पेरिटोनियम सुकत नाही आणि सगळ्या अवयवांचं रक्षण होतं. ज्याप्रमाणे डाळिंबामध्ये दाणे तरतरीत राहतात का, तर आतला पडद्यावरती ते अवलंबून आहे. त्याच पद्धतीने तूप कापूर सोडल्यानंतर 2 अवयवांमधला पडदा देखील सुरक्षित राहतो. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हंसचक्राला फिल्टर असं म्हणलेलं आहे. कुठल्याही सृष्टीमधनं सूक्ष्म स्वरूपात व्हायरस, बॅक्टेरियांचा प्रवेश झाला तर हंसचक्र त्याला फिल्टर करतं. जर फिल्टर नाही झालं, हंसचक्र ठीक नसेल, तर मग आपल्यावरती ह्या संसर्गजन्याचं आक्रमण होतं. म्हणून पूर्वी जर आपण पाहिलं असेल की खूप लोक जेव्हा स्वाईन फ्लू आला होता तेव्हा कापूर हातात घेऊन, वास घेऊन हिंडत होते. पण आपल्याला श्री माताजींनी तूप कापराच्या माध्यमातून ऑलरेडी हा कापूर आपल्या नाकात तुपामार्फत सोडलेला आहे. त्याच्यामुळं ॲटोमॅटिक ह्याच्यापासून आपलं संरक्षण होतं. काही लोकांना ह्याचा त्रास होतो, मग अशावेळी नुसतं थोडंसं तूप सोडावं. आणि खूपच जर त्रास झाला, शिंका आल्या किंवा जड पडलं डोकं, 100त 4-5 जणांना असं होतं, अशावेळी त्यांनी तवा गरम करून थोडासा ओवा टाकून
त्याची धुरी नाकाने ओढणं गरजेचं आहे, जेणेकरून सगळं पाणी नाकातलं तूप आणि पाणी बाहेर पडेल आणि त्यांना हलकं वाटेल. हे तूप कापूर बनवायचं कसं, यासाठी आपल्याला देशी गाईचं एक 100 ml तूप घ्यायचं आहे, किंचित कोमट करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 15 ते 20 ग्रॅम भीमसेनी कापूर हा एकदम कूट करून त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे आणि पूर्णपणे त्यात तो विरघळला पाहिजे आणि मग तो एका बाटलीमध्ये भरून ठेवायचा आहे. त्यानंतर नेहमी सोडताना तो आधी थोडा कोमट करायचा आहे आणि मगच नाकामध्ये सोडायचं आहे. ड्रॉपरनी जर सोडलं तर खूप सोपं जातं आणि हंसचक्रापर्यंत तूप पोचायला ड्रॉपरनी फार लवकर मदत होते. तर अशा पद्धतीने सर्व सहयोगांना विनंती आहे की फार महत्त्वाची, मुलांच्या अभ्यासाला उपयुक्त असलेली ही फार महत्त्वाची ट्रीटमेंट सर्वांनी दिवसाआड दुपारच्या वेळेत किंवा संध्याकाळच्या वेळेत झोपताना 2-2 थेंब नाकात सोडायचं आहे. फक्त थंडी, गारठा, पावसाळा असताना संध्याकाळी सोडायचं नाही आहे, अशा वेळी दुपारच्या वेळी सोडायचं आहे. उन्हाळ्यामध्ये थोडंफार तुम्ही संध्याकाळी सोडलं तरी चालेल. काही लोकांना तूप कापूर सोडताना जर त्रास होत असेल तरीसुद्धा, तर त्यांनी नुसतं बोटावरती 1 थेंब तूप कापूर घ्यायचं आणि नुसतं बाहेरून नाकाला, बाहेरच्या नाकपुडीमध्ये आतमध्ये थोडंसं लावू शकता. काही नाही तर थोडा तरी फायदा त्याच्यामध्ये होऊ शकतो. पण सर्व सहयोग्यांना ही ट्रीटमेंट अतिशय महत्त्वाची आणि ध्यानाला पोषक अशी ट्रीटमेंट आहे, उत्थानाला पोषक अशी ट्रीटमेंट आहे. जय श्री माता जी. अभी हमने ये मराठी में सुना, इसमें के जो 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको हिंदी में बताता हूँ. घी कपूर आपको हर एक दिन के बाद 2-2 बूंद सोते समय या दोपहर के वक्त आपके नाक के ऊपर वाले हिस्से में छोड़ना है ताकि हंसा चक्र तक वो जाए. उसके काफ़ी सारे फ़ायदे अलग अलग इसमें माँ ने बताए थे. सबसे पहला निर्विचारता आ जाती है, आज्ञा चक्र के रिएक्शंस कम होके तालु की अनुभूति बढ़ना शुरू हो जाती है. दोनों हाथों का चैतन्य भी बढ़ता है. बच्चों के पढ़ाई में और याद रखने में उनको बहुत सहायता मिलती है. ये बनाने की विधि में आपको 100 ग्राम देसी गाय का घी लेके गुनगुना करके उसमें भीमसेनी कपूर आपको 15 से 20 ग्राम आप डाल सकते हैं 100 ml घी में. किसी को ज़्यादा लगता होगा तो घी बढ़ाइए, किसी को कम लगता होगा तो कपूर बढ़ाइए. तो इस प्रकार 100 में से 5 लोगों को इसकी परेशानी हो सकती है, छींक आना या सर थोड़ा सा हेवी होना. तो उस समय में आप तवा गरम करके उस पर अजवाइन डाल के प्लेन अजवाइन की धुनी आप ले सकते हैं और उसको साफ़ कर सकते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हम अभी छोटा सा आधा मिनट का देखने वाले हैं, जिसमें वो वीडियो लंदन में जो ज़्यादा ठंडी होती है और उसके कारण सर में जब सर्दी जम जाती है तब नाक में क्या डालना है वो माँ बता रही है और उसका मैं तुरंत थोड़ी देर में बताता हूँ. पहले हम वीडियो सुन लेते हैं. छिंकनी के बारे में बताया है. But another thing I'll tell you, sometimes you feel pressure in the brain, isn't it? And I've experimented myself on that. So now this, you must sneeze and your cold must go out. The cold has gone up to the head. This theory doesn't exist for you people. But this cold, if it goes to the brain, you become absolutely, this bhan ko कहता है, गुम्मस जो लगता है, गुम्मस, it's like you just, it's like blocked. Yeah, the whole head is blocked. You know, it's like whole encased in something. There's pressure. And you can't hear. You feel so disgusted. That's the thing. For that, you must take out your food. For that, you see, one thing I found out in Ayurveda is called shinkani. There is a shinkani. Still have to bring the shinkani. Alga Atela. It is a small little bottle. It costs you 2 rupees or 3 rupees. If you smell it, with that smelling,
sneezing. You get a terrible sneezing and it's, very common in England. Yes, yes. If you, as many people don't wear hats, they don't cover themselves. They catch cold. सर में आ जाए, it's in the head. जय श्री माता जी। ये वीडियो काफ़ी पुराना है, इसीलिए थोड़ा समझ में दिक्कत आती है। माँ ने ये बताया है, छिंकनी नाम का एक छोटा चूर्ण आयुर्वेदिक शॉप में मिलता है। इसमें नीलगिरी वगैरह कुछ वनस्पति होती है, जिसको आप उसको सूंघने से आपको थोड़ी देर में 5-6 छींक आ जाती है, जिसके कारण आपके नाक में, सर में ठंडी के कारण सर्दी जम गई हो या घी कपूर के कारण किसी लोगों को परेशानी हो, तो आप उसे सूंघ लो और तुरंत फिर 2-3 छींक आने के बाद आपका सर, आपका आज्ञा हंसा हल्का हो जाएगा, पूरा जो अंदर का कफ है निकल जाएगा। ये खास करके इंग्लैंड के सहयोगियों को बोला था जहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है। तो ये था छिंकनी का वीडियो। तो ये सारा हमने अभी जो माँ की कृपा में घी कपूर और हंसा चक्र रिलेटेड ये वीडियोस देखे हैं। वापस एक बार दोहराता हूँ, 88 की जर्मनी की हंस पूजा, 90 की यूएसए की हंस पूजा, 91 की न्यूयॉर्क की हंस पूजा, 92 की कनाडा की हंस पूजा और 87 की विष्णु माया पूजा में भी हंस के बारे में माँ ने जिक्र किया है। लास्ट वीडियो है जिसमें हम जो हमारी जिम्मेदारी क्या है, जैसे कि जो भी संकट इस पूरे देश में आया है तो हम ज़रूर वाइब्रेशंस बंधन दे रहे हैं, तो हमारी सहयोगियों की क्या ड्यूटी है ये माँ हमको बता रही है। वो हम सुन के फिर थोड़ा ध्यान करेंगे और फिर आगे की सूचना। जय श्री माता जी। You have to think what's happening in the world. What are the problems of the world? You are responsible for that. Not only that, but you have to pray. In your prayers, you have to say, Mother, solve this problem. Collectively, individually, you have to take your attention from yourself, from your smaller life, to a much wider thing. Then you are saved. And you have to think that it is your duty to ask for divine help, that all these problems should be solved. This is your job for which you are selected. Your asking is going to work out because, as you know, I am desireless. You have to desire for it. Whatever you desire will work out. The protection, the affection, the compassion of Mother is with you. But you have to look after this world and show the concern that you have. जय श्री माता जी। श्री माता जी के आभार मानते हैं परम पूज्य श्री माता जी। हम सभी सहयोगी आपके ऋणी है, आभारी है माँ। आपने हमें ये सब ज्ञान उपलब्ध करके दिया, हमें साक्षात्कार दिया, अनुभूति दी। परम पूज्य श्री माता जी, ऐसा ही संतुलन
आप हमसे हमेशा करवा लीजिए। आपको जैसा चाहिए वैसे सहयोगी आप हमको बना लीजिए। यही आपके चरणों पे नम्र विनंती, नम्र प्रार्थना। जय श्री माता जी। सब सहयोगियों से विनंती है, ये सारे छोटे छोटे चीज़ों का अनुभव और एक्सपेरिमेंट करके वाइब्रेशंस में क्या बदल आता है, इसका अभ्यास इन दिनों में करिए, क्योंकि इन दिनों में ऐसा टाइम वापस हमको नहीं मिलेगा। तो सब लोगों को ये होमवर्क है कि ये सब का अनुभव लेके, खुद का अनुभव बढ़ा के, क्योंकि जैसे ही ये छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, हम सबको तुरंत प्रचार प्रसार में लगना है। इसीलिए ये पूर्व तैयारी माँ हमसे करा ले रही है। हम अभी ध्यान करेंगे और उसके बाद माँ को प्रणाम करके कुंडलिनी बंधन लेके फिर अपने काम के लिए चले जाएंगे। जय श्री माता जी।